completed one chapter of economics and now we are going to start with OC. Okay, so what do we have today? We have chapter number 1 and its first lecture. You know chapter number 1 is Principles of Management. Earlier it used to be the last chapter. Out of 8 chapters, Principle of Management used to be the 8th chapter. Now they have, उसको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा नहीं, it won the race. Now it is the first chapter, Principles of Management. Okay. Now in this chapter we are going to study 4 concepts. First is introduction, obviously. चलो 3 concept. Introduction को count नहीं करते. First is we are going to study about the nature of management. Okay. कि how management is actually, कि management कैसा है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. Principles of management कैसे होते हैं, and then we are going to study about significance of management. Okay. Significance of management. Significance means what? Significance means nothing but importance. Why principles of management are important? We are going to study about it. We are going to study about nature, how actually the principles of management are in behavior, and second is why principles of management are important. Okay, significant क्यों है इतना important क्यों है, predominant क्यों है. So we are going to study about that particular thing. 2 चीजें पढ़ेंगे आज हम लोग. And third thing is actually principles of management. There are 14 principles of management and that particular concept requires a huge lecture. मतलब एक separate lecture चाहिए, huge नहीं बोलेंगे, separate lecture चाहिए, कम से कम आधा घंटा लगेगा, 30 to 35 minutes. So we are going to study that particular thing in next lecture. उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे, इसको भी डिटेल में लेंगे, बट दिस 2 concepts are 2 small concepts. वो एक बड़ा concept है, so उसको हम लोग बाद में लेंगे. Okay, so starting with principles of management. Now what are principles of management? Principles of management होता क्या है? Okay, principles of management you have studied in your 11th standard as well. मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है, बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. The thing, the concepts और you can say कोई भी चीज़ अगर कंपनी में करने के लिए, कंपनी को एकदम सक्सेसफुल तरीके से चलाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, that particular thing is called management. Your management should be strong. Your management should be proper. Your company should have a good management, a friendly management, or you can say that disciplined and friendly management. हर पर्टिकुलर चीज़ एकदम टाइम टू टाइम होनी चाहिए, कोई भी चीज़ का डिले नहीं होना चाहिए, पेमेंट टाइम पे मिलनी चाहिए, काम प्रॉपरली होना चाहिए, ऑप्टिमम एकदम काम होना चाहिए. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स तो कंपनी को चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो एकदम सिंपल. ओके, हर पर्टिकुलर कंपनी, जो भी कंपनी तुम लोग देख रहे हो आज की तारीख में दुनिया में, वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है. दे हैव केप्ट देयर मैनेजमेंट वेरी नाइस. ओके, द कंपनी हैज़ ईच एंड एवरीथिंग एंड वो हर चीज़ उनकी प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन है. दे आर नॉट मिसयूजिंग और मिसलीडिंग एनीबडी. इफ़ यू सी एनी सच कंपनी, तो वो कंपनी ऑब्वियसली लॉस कर रही होगी या तो कम प्रॉफिट कर रही होगी, जो मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं रखी है. ओके, बट जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग है, दे विल हैव गुड प्रॉफिट एंड उनकी कंपनी अच्छी खासी सक्सेस करती होगी. ठीक है, सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हाउ एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर. फर्स्ट इज यूनिवर्सल इन नेचर. Principles of management are universal in nature. If I am staying in India, my friend is staying in Africa, you people will grow and you will get distributed. तुम लोग पूरे दुनिया में फैल जाओगे. कहीं भी जाकर अगर तुम लोग कंपनी खोलते हो, कोई भी कंपनी, तो हर कंपनी में सक्सेसफुल तरीके से उस कंपनी को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉपर तरीके से कंपनी को चलाने के लिए यू नीड मैनेजमेंट, एंड दैट मैनेजमेंट इज universal in nature. It is not different in any part of the world. What management we adopt in India is the same management we adopt in America, is the same management we adopt in Africa, is the same management we adopt in Australia, is the same management we adopt in Jupiter. Sorry, तो अलग planet हो गया. Okay, so हर एक thing, हर एक जगह पे principles of management universal role play करता है. It is not at all different from पूरे प्लैनेट पे सेम है, इन सिंपल वर्ड्स. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट कैन गेट अडॉप्ट टू एनी ऑफ द सिचुएशंस. इट कैन गेट अडॉप्ट टू एनी ऑफ द सिचुएशन. यू कैन मोल्ड इट इन एनी वे. ठीक है, कोई भी सिचुएशन आने दो, हर सिचुएशन में हम लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है, हर सिचुएशन के हिसाब से हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं.
अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आए तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली हम लोग यूज कर सकते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज स्मॉल देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन certain ways. There are 14 principles of management. I am repeating this thing again. There are 14 principles of management and हर 14 principle of management अलग अलग तरीके से अलग अलग problems को solve करता है. So it is very flexible in nature. You can mold it in any way. So principles of management कोई भी situation के हिसाब से change हो सकता है. First thing. And third point is general guidelines. Don't get confused with second and third points. Principles of management can get changed with any of the situations. Flexibility, okay? And general guidelines क्या बोलता है? Principles of management can solve any problems, any of the problems, okay? It is adopted in any situations and it can be adopted in any way. Flexibility क्या बोलता है कि हम लोग principles of management को कैसा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? It can be used in any way. कोई भी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा भी सिचुएशन होगा। और ये क्या बोलता है जनरल गाइडलाइंस कि कैसा भी सिचुएशन होने दो हम लोग उस पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, बी इज सेइंग दैट इट कैन बी अडॉप्टेड विद ए इज सेइंग दैट इट कैन बी अडॉप्टेड विद बी। सिंपल, बट ए और बी में बहुत फर्क है। व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी सेज दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अडॉप्टेड इन एनी वे, इन एनी सिचुएशन, ओके? And what particularly general guideline says, we can adopt principles of management in any situation. कोई भी situation आने दो हम उसमें principles of management adopt करेंगे। कोई भी problem आने दो, कोई भी situation आने दो, हम लोग उसमें principles of management को कैसे भी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा हमको flexible लगता है, जैसा हमको ऐसा you can proper लगता है, okay? Fourth is cause and effect relationship. Cause and effect relationship मतलब क्या कि you can use principles of management in any way, but उसका जो इफेक्ट आएगा ना वो तुम्हारी कॉस्ट पे रहेगा। How you use the principle of management? If you have adopted the principle of management very properly, okay, if you have adopted it very strictly, if you have adopted principles of management in a proper way, in very strict way, if you are keeping the management of your company very nicely, okay, then the effect of that particular call, then the effect of that principle of management, then the effect of that management will be very positive. If you are using this much management, then the result will be this much. If you are using this much management, then the result will be this much. जितना तुम लोग मैनेजमेंट को अच्छे से अडॉप्ट करोगे उतना तुम्हारा उसका इफेक्ट भी अच्छा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसा करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सिंपल, ओके? All principles are of equal importance. Now we are discussing from starting हम लोग एक ही बार डिस्कस कर रहे थे principles of management. There are 14 principles of management. So please make sure तुम लोग दिमाग में आज ही ये पढ़ डाल लो कि principles of management जो है 14 principles of management जो है वो 14 के 14 principles सारे के सारे इक्वल इंपॉर्टेंस के। यू कैन नॉट से दैट कंपनी चलाना है, हाँ हम लोग 10 मैनेजमेंट अडॉप्ट कर लेंगे, हाँ हम लोग 13 मैनेजमेंट अडॉप्ट, हम लोग 13.5 अडॉप्ट कर लेंगे। यू कैन नॉट से दैट 13.5 इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट से दैट ऑल 14 प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इफ यू आर अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर 14 प्रिंसिपल देन ओनली योर कंपनी विल गेट प्रॉफिट। तुमने एक भी मिस कर दिया, हो सकता है उस एक को मिस करने से लॉस हो जाए, 13 को अडॉप्ट करने से प्रॉफिट नहीं होगा। समझा? Next we have is significance. I hope you people have understood nature of principles of management. It's quite simple. It is very easy. It is very easy to understand. This is the simplest chapter of your OC textbook, first chapter. Okay. Make sure कि तुम लोग इसको स्टडी करना चालू कर। Just because your 12th standard has started, तुम लोग घर पे पढ़ना चालू कर दियो ऐसा समझ लो। But your 12th standard has started. Okay. कॉलेज स्टार्ट होगी, क्लास चालू होगी. It will be a very बहुत घाई में तुम्हारा पोर्शन चलता रहेगा. So don't do that. ठीक है? मेक श्योर कि तुम लोग अभी से पढ़ना चालू कर दो। वीडियोस हम लोग क्यों पोस्ट करें? टाइम पास के लिए कि हमको घर पे कुछ करने मिल नहीं रहा है। इट इज जस्ट फॉर यू पीपल दैट यू लर्न एट होम, ओके? प्लीज आस्क मी डाउट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। प्लीज आस्क मी डाउट्स इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, यू कैन आस्क मी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लीज मेक श्योर यू पीपल आर स्टडीइंग। Significance of principles of management. Significance means importance of principles of management. Significance मतलब importance. Okay.
So why principles of management are important? Because it provides useful insight to the manager. It provides proper information to the manager. अंदर की खबर मैनेजमेंट को कैसे मिलती है, मैनेजर को कैसे मिलती है, मैनेजर को कैसे पता चलता है कि कंपनी को कैसा हमको चलाना है, मैनेजमेंट को कैसे पता चलता है कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैनेजर को कैसे पता चलता है कि कंपनी में क्या क्या चीज करने की जरूरत है, व्हाई, हाउ एंड हु सेज दैट पर्टिकुलर थिंग, कैसे पता चलता है मैनेजर को कि कैसा मैनेजमेंट अडॉप्ट करना है. It is because of these principles of management, 14 principles of management. Principles of management important है because वो मैनेजर को हेल्प करता है उसके डे टू डे एक्टिविटीज में काम करने के लिए. ओके, principles of management are important because it helps the manager, you know, to understand the company in a better way. Okay, second point, helps in efficient utilization of resources. Now, what is efficient utilization of resources? Efficient का वर्ड का मतलब क्या होता है? I know you people not come out of the phone and tell me, but I hope you people know because तुम लोग 12th में आ गए. 11th का कॉन्सेप्ट है ये. 11th में हम लोगों ने सीखा है ये पर्टिकुलर चीज. हेल्प्स इन प्रॉपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंट मतलब कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, उस कम रिसोर्सेज को यूज करके बेस्ट रिजल्ट देना. मेकिंग द यूज ऑफ resources in such a way that the wastage is less and the result is best. Okay, that is called efficient utilization of resources. How is that possible, sir? अभी इसमें wastage कम होगा, efficiently होगा, ये management से क्या लेना देना है इसका? I'll tell you how. See, management, 14 principles of management, it tells you many things. Okay, 14 principles पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. What? अगर हमारा हर एक काम टाइम टू टाइम होगा, हर एक काम हम लोग ने सिस्टमैटिक तरीके से किया, हर एक मशीन हम लोग ने प्रॉपर तरीके से ला के रखी है कंपनी में, हर एक इंसान टाइम टू टाइम काम कर रहा है और उस मशीन में अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं और उस रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर अपडेटेड मशीन विल, यू नो, इट विल यूज लेस पावर, लेस रिसोर्सेज, इट विल क्रिएट लेस वेस्टेज एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट. हर पर्टिकुलर चीज, कंपनी की हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है. यू नो, इफ यू आर नॉट पेइंग द बिल ऑफ योर कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर कंपनी, देन योर कंपनी विल गेट शट डाउन. लाइट ही नहीं है तो लाइट के बिना तो कोई काम होगा नहीं. सेकेंड थिंग, इफ यू आर नॉट क्लीनिंग योर, यू नो, फैक्ट्री और इंडस्ट्री, your workers will get disappointed. They can, you know, go on strike or they can leave the company. Who will work then? कौन चलाएगा? तुम खुद चलाओगे अकेले? No, it is not possible. You know, हर एक पर्टिकुलर चीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ी है. यू नीड ईच एंड एवरीथिंग इन एन एफिशिएंट वे. नॉट जस्ट योर रिसोर्सेज, नॉट जस्ट योर वर्कर्स, नॉट जस्ट योर इलेक्ट्रिसिटी, नॉट जस्ट योर लैंड, नॉट जस्ट योर कैपिटल, नॉट जस्ट you yourself. It should be everything from zero to unlimited, from zero to infinite. Your each and everything should be perfect or more than perfect, not less than perfect. If you are less than perfect, you will get less profit. If you are not perfect at all, you will get loss. Make sure that you do better thing for your company. In short, you are doing better thing for yourself. You are gaining more and more profit by doing such things. Okay. It helps in scientific decisions. कोई भी डिसीजन हवा में नहीं लेती है कंपनी. कोई भी डिसीजन मैनेजर हवा में नहीं लेता. कैसे भी हम लोग कोई भी डिसीजन कभी भी कैसे भी नहीं ले सकते. यू नीड प्रॉपर, सेन डिसीजन. सेन मतलब क्या? पागल लोग की तरह डिसीजन नहीं लेना. हमको सोच समझ के एकदम प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम डिसीजन लेना है ताकि कंपनी में प्रॉफिट होता रहे. यू नो, मैनेजर शुड see when and where, from where the opportunity is knocking the doors of industry, and that particularly manager should make sure कि वो opportunity को grab करे और कंपनी को प्रॉफिट की तरफ लेके जाए. Okay, it is the duty of the manager that it looks after the company with the help of principles of management to ensure that the company is doing greater profits in future and present in comparison to the past. Okay, कंपनी में प्रॉफिट होना जरूरी है और उस प्रॉफिट को करने के लिए हमको साइंटिफिक डिसीजन लेना पड़ेगा. हमको प्रॉपर टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा और दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज, यू नो, कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, it helps to coordinate and control. Now we have so many departments in our company. ये चीज हमने डिस्कस की ही नहीं. We have raw material, लेके आने वाले ट्रक, ट्रक से उतारने वाले वर्कर्स, वर्कर्स कंपनी के अंदर वो
रॉ मटेरियल को रखते हैं, रॉ मटेरियल जाता है मशीन में, वो फिनिश गुड्स होके निकलता है, फिनिश गुड्स बन, व्हेन द फिनिश गुड्स कम्स आउट इट इज पैक्ड, व्हेन इट इज पैक्ड इट इज लेबल्ड, लेबल लगने के बाद ट्रेडमार्क लगता है, पूरा डिजाइन होती है, उसको फिर बॉक्स में डाला जाता है, फिर से ट्रक में डाला जाता है, ट्रक जाता है सिटी में। सी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन अ कंपनी, from truck to truck we have so many things going in between, unloading from raw material to finished goods, from finished goods to packed goods, from packed goods to label goods, from label goods to trademark goods, from trademark goods to packed goods, from packed goods to transported goods. Okay, इतना सारा चीज हुआ, ट्रक से उतरा, वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके पैक होके ट्रक में चला गया, फिर से इट टेक्स टाइम। ओके, बट ये सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, एक पैकिंग डिपार्टमेंट का, एक लेबलिंग डिपार्टमेंट का है, एक ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट का, एक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का, एक अनलोडिंग डिपार्टमेंट का, एक लोडिंग डिपार्टमेंट का, हर एक लोग अलग अलग है कि नहीं, बट ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल आर लिंक्ड टू ईच अदर। एक कड़ी बीच में से निकल गई, समझो ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बनाने वाली मशीन ही खराब हो गई, तो ऑब्वियसली आगे वाले लोग काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे, इनका भी काम प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, the finished goods will not get produced and raw material जो है वो finished goods में convert हो नहीं पाएगा, just because the machine is not working properly. If the truck people, if the transportation department goes on strike, तो ना raw material आ रहा है, ना finished goods जा रहा है, ना बीच का काम हो रहा है. Each and every particular department is different to each other but linked to each other in a particular one simple company जो efficiently काम करे principles of management की वजह से. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, हर एक डिपार्टमेंट फ्रॉम अनलोडिंग टू लोडिंग, फ्रॉम मेकिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, लिंक टू ईच अदर इन वन कंपनी, ऑल द डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, यू नो. ये तो कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, सब एक साथ काम करें अलग अलग. द डांस विच यू डू ऑन स्टेज, ठीक है, तुम लोग सब एक साथ डांस कर रहे हो, अलग अलग डांस कर रहे हो बट एक ही स्टेप कर रहे हो ना, है ना, अलग अलग डांस कर रहे हो बट एक ही स्टेप कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ओके, एंड विद दैट यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ एज वेल, कि तुम लोग स्टेप्स को कंट्रोल्ड वे में करो. ऐसा नहीं कि इफ यू आर डूइंग डांस देन तुम लोग डांस करते करते स्टेज के नीचे नहीं गिर सकते ना. यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ, यू आर कंट्रोलिंग एंड गेटिंग मैच्ड विद अदर पीपल एज वेल. तुम लोग दूसरे लोग के साथ मैच कर रहे हो अपने स्टेप्स को, ताकि तुम्हारा जो स्टेप है वो उनकी तरह हो, उनका जो स्टेप है वो तुम्हारी तरह हो. हर एक इंसान जो अलग अलग डांस कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से करे. ओके, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपनी में. जस्ट बिकॉज इफ यू आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग योर कंपनी प्रॉपर्ली, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर कंपनी प्रॉपर्ली, दैट पर्टिकुलर टाइम यू नो दैट योर कंपनी कैन गो इनटू लॉस, जस्ट बिकॉज तुम्हारे कंपनी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ से चला जा रहा है. ओके, develop objective approach. What does this particular part says? Okay, तुम लोग कंपनी में काम करते हो, I am the manager and I have 1000 workers and you know officers and all people. I am the manager, or I can say that I am the owner. If I am adopting principles of management in a better way in my company, that means I am क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. आई एम मेकिंग श्योर कि तुम हमारे कंपनी के जितने भी लोग हैं उन सबके माइंड में वो जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो चला जाए. कंपनी किस पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रही है वो सबको पता होना जरूरी है. ओके, ऑब्जेक्टिव पता होना जरूरी है. व्हाई वी आर वर्किंग इन दिस कंपनी, व्हाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, यू नो, कंपनी किस चीज के लिए काम कर रही है, क्या उनका गोल्स है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उनका एम है, वो हर चीज कंपनी के हर एक इंसान को क्लियर होना जरूरी है. जस्ट बिकॉज then only they will work properly, then only they will trust the company, then only they will give their best for the company, because company has kept trust on the workers, officers, staff members, each and every person working in that company. Okay, so we have the nature of management, significance of management, and then we are going to complete with principles of management, actual, you know, the part which has to be studied in this particular chapter. Principles of management, nature of प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है
जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है. आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग इन next lecture. I hope you people have understood nature of principles of management and significance of principles of management. You people are sitting at home. I am repeating this particular thing in every lecture, that please watch this YouTube videos just for your benefits. If you have watched, please forward it to your friends as well. Share, like and subscribe, just because it will increase the number of subscribers. It will increase the number of people watching our channel. It will increase the number of the people who are getting in touch with our classes, with our channel as well. It is your responsibility to do that. It is your responsibility to make sure that you people are studying at your home. You are referring from YouTube lectures and you have the PDF of textbook. If you don't have, please WhatsApp me. If you have any doubt, you can comment me on YouTube comment section. If you don't understand anything, I'll clear that particular thing in next lecture. Till then, stay home, stay safe, and make sure that you people are studying at your home. This is not a time pass. लॉकडाउन है तो तुम लोग घर पे पढ़े मत रहो. प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल आर स्टडिंग. एंड टेलिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, टाइम पास मत करो. 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया है, बस तुमको पता नहीं चल रहा है. प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, और उसी का पहला चैप्टर अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा. ओके, इकोनॉमिक्स तो हो गया है, ओसी भी हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.